frankly speaking, you don't think about the targets because it is beyond our imagination. The way in which the EV industry's number is increased, it is really amazing. The most important thing is the cost. Now in our country, we have the import of the fossil fuel costing 22 lakh crores. And now as compared with petrol and diesel, now suppose you are using 120 rupees of petrol in the car or a scooter, then for electricity it need only 10 to 12 rupees. For CNG, it will need 50 rupees. So it is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. Now the problem is the cost of the e-vehicle was the problem. Because when we start this project, particularly when we start talking about e-vehicle, the cost of the lithium ion battery was $150 per kilowatt per hour. Now in India, it is up to $100 per kilowatt per hour. And now one of the cell manufacturers, he was telling me that it comes to 80 rupees, $80 per kilowatt per hour. It means that it will be the same like petrol and diesel. And if you have a petrol car, you are spending 30,000 rupees per month. For electric, you have to spending only 3 to 4,000. So naturally, there is a very, very reasonably good saving, no pollution, import substitute, cost effective, pollution free, and our models are good. Yeah, I don't know take the name of the company, but our models are equivalent to Tesla. Even some of the model, I feel that they prove to be more than Tesla. And rates are very cheaper. So sky is the limit. Huge potential is there. और ईवी वालों के पास जितनी ताकत और कैपेसिटी इन्होंने कितना भी बढ़ाया तो भी डिमांड पूरी नहीं हो सकती, समुद्र है पूरा. जी, आपने टेस्ला की बात करी. Are we in conversation with Tesla for investments in India? Sir, I'm not talking about them. Only I'm telling you. Now, you just understand the word scenario. When I taken charge as a minister, the size of automobile industry was 7 lakh crore. Now, presently, the size of the industry is 22 lakh crore. And we have just surpassed Japan. And our number is now third. So the first number is USA. The size of the industry is 78 lakh crore. Second is China. It is 47 lakh crore. And India, it is 22 lakh crore. And I am confident. And my previous track record is so perfect that whatever I am going to tell to the people, 100% that is going to happen. In 5 years, we will be number one in the world, and e-vehicle will be the main reason for increasing the size of industry. And there is domestic market and export market. Now all two-wheeler, Bajaj, TVS, Honda, Hero, they have 50% of their production is export. And now in EV, the domestic demand will be increased. At the same time, export demand will be increased because of the quality of the product, because of the design of the product, and because of the cost of the product. Sky is the limit, and I am confident that this industry is going to 100% fulfill the dream of our Prime Minister to make India Atmanirbhar Bharat. Sir, with EVs, see, आपने cost की बात करी. With lower cost, adoption बढ़ गया है cities में. City के अंदर चलने में problem नहीं होती है, लेकिन जब आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, then people have this fear that about this range fear, right? That will I find a charging station on the way or not? So what are you doing about that? देखो वो problem नहीं है. मैं इसी होटल में आता था. नाम चैनल वालों के नहीं लेता मैं. वो मुझे पूछते थे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हो और रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? ये सवाल मुझे पूछा गया है. अब कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी, कोई धक्का नहीं मार रहा. आपको एक बात फिर दूसरा प्रश्न पूछते थे, चार्जिंग बीच में कैसा करेंगे? अभी हर व्हीकल जो है वो 250 से 400 किलोमीटर तक ऑलरेडी उसका चार्जिंग है. और अभी बजाज ने और टीवीएस ने स्टडी किया तो एक स्कूटर दिन भर में 24 से 26 किलोमीटर चलती है, और जबकि उनकी स्कूटर 125-130 किलोमीटर के लिए उन्होंने चार्ज की. ये जो नए स्टार्टअप आए 400 आए, उन्होंने क्या किया 60 से 70 किलोमीटर की बैटरी रखी, कॉस्ट कम कर दी और वो मार्केट में पॉपुलर बन रहा है. तो पहली बात, चार्जिंग डोमेस्टिक अपने शहर में तो कोई नहीं है. अभी एनएचआई के तरफ से हम लोग 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, वहाँ चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं. काफ़ी प्राइवेट लोग अपने चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं. अब फास्ट चार्जिंग सिस्टम भी आ गई है
और मैं तो अब नई एक बस पहला पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू कर रहा हूँ। 135 सीटर बस है और उसमें फ्लैश चार्जिंग है, उसमें हिटैची और सीमेंस की टेक्नोलॉजी है और टाटा का भी ज्वाइंट और 2 कंपनियों का हुआ। वो बस में ये जो कार्ड होगा दिखाकर उतरना और जाना यही होगा और बस लग्जरी होगी, हर चेयर पर उसके ऊपर टीवी होगा और म्यूजिक सिस्टम होगी और बस में बस होस्टेस होगी, एयर होस्टेस जैसी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा और डीजल बस की तुलना में उस बस का किराया 30% कम होगा। अब मुझे बताइए कि तो ये तो बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, हाउ इट इज गोइंग टू चेंज द मैप ऑफ इंडिया। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है और यही चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% है। और मेरा विश्वास है कि हमने हाईवे अच्छे बनाए और फ्यूल में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG और हाइड्रोजन, ये लगभग अब हिंदुस्तान में अभी बहुत जल्दी आएगा। मैं तो अभी आपके यहाँ जो गाड़ी में आया हूँ वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है इनोवा टोयोटा की, जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली खर्च तैयार करती है और उसकी कॉस्ट पेट्रोल की तुलना में केवल 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव आता है। तो पब्लिक के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अब टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, हुंडई और टोयोटा, 5 कंपनीज अब अपनी फ्लेक्स इंजन पे ला रही है, इलेक्ट्रिक की डेवलपमेंट हो रही है। अभी CNG की मैंने बजाज की 2 व्हीलर लॉन्च की मोटरसाइकिल, तो उन्होंने उनकी पेट्रोल की मोटरसाइकिल का खर्चा पर किलोमीटर 2 रुपये 25 पैसे है और CNG का 1 रुपया है। अब पूरे पंजाब हरियाणा में 200 लाख टन परली राइस स्ट्रॉ बनता है। ये पहले साल अभी 60 लाख टन राइस स्ट्रॉ का कन्वर्शन बायो CNG में हुआ और 2 साल में राइस स्ट्रॉ का पूरा कन्वर्शन CNG में होगा या इथेनॉल में होगा या बिटुमेन बनेगा। एविएशन फ्यूल भी बन रही पानीपत में, बायो एविएशन फ्यूल। तो मुझे लगता है कि पोल्यूशन दिल्ली का भी कम होगा और ये सब अल्टरनेटिव और बायो फ्यूल के कारण हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सर, दिल्ली के पोल्यूशन की आपने बात करी, लास्ट 1 मंथ वी हैड अ वेरी बैड स्टेट हियर। अभी भी 331 है AQI आज का। सो व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू एंड योर मिनिस्ट्री डू टू रिड्यूस दैट? देखिए, ये नेचुरल प्रोसेस में हो रहा है। देखो, मैं खुद 5 टन CNG तैयार करता हूँ परली से। ये ट्रैक्टर अभी महिंद्रा का लॉन्च हुआ है। ये जो पोल्यूशन कंसर्न है, 40% पोल्यूशन जो हमारे देश का है वो एयर पोल्यूशन, उसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। अब हम इलेक्ट्रिक बसेस, CNG कार, CNG स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर, फ्लेक्स इंजन, इथेनॉल एज ए फ्यूल, ये जितने इनिशिएटिव लिए उससे ग्रीन भारत का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। और मेरा विश्वास है कि अब सोलर पावर जो है वो हम हमारे टोटल पावर के बास्केट में 40% सोलर पावर